أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اس مجلس میں جو آیت مبارکہ میں نے انتخاب کر کے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تو اس میں ایک لفظ حکمت کا ہے. جب کوئی حکیم بولتا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور جب کوئی فلسفی بولتا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور جب کوئی عالم اس کو بولتا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. تو مختلف جملوں میں سیاق کے اندر اس کا معنی جڑتا ہے وہ مختلف ہے. تو آج کی یہ مجلس اس کے حکمات کی ہے، اس لیے اب جب ہم نے اس لفظ کو استعمال کیا غلام آپ کے سامنے سیمی صاحب اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے پاکستان میں صحابہ کرام کتنے جھنڈے پہ کھڑے ہوئے. میرا نام حکیم محمد احمد سلیمی ہے. میں نیشنل کونسل پر طب کا 2015 سے 2020 تک انتظامی کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں اور پاکستان طبی کانفرنس کا پنجاب کا جنرل سیکرٹری ہوں. اس کے علاوہ کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان طبی کانفرنس جس کی بنیاد وسیع الملک حکیم اجمل خان نے انڈیا میں رکھی تھی، آل انڈیا آیورویدک طبی کانفرنس کے نام سے، اس وقت بھی جو کچھ باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے تعارف کے بعد. باقی دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنا اپنا تعارف کروا دیں تاکہ اس صاحب سے اچھا نام بتا حکیم جنید صاحب. جی حکیم محمد طارق، حکیم محمد شفیع، حکیم فضل الرحیم، حکیم رانا وحید احمد، حکیم منظور فین، حکیم زہیر حکیم محمد سعید طاہر. جی سعید صاحب. حکیم محمد سعید، حکیم محمد عمران چشتی. بولے اپنا نام تو حکیم. سید ذیشان آباد، سید ذیشان آباد، سید ذیشان حکیم طاہر حکیم محمد واجد قرآن، حکیم محمد اسماعیل. اچھا بٹ صاحب حکیم نہیں میں اچھا گفتگو شاری ماشاءاللہ آپ نے حکیمانہ کی ہے، ہم بھی آپ کو حکیم ہی سمجھتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کو زحمت ہوئی. میں نے اب مجھے یہ پتہ لگا کہ ہم 99% یہاں پہ حکیم بیٹھے ہیں. پاکستان طبی کانفرنس جس کا آغاز 1906 میں آل انڈیا آیورویدک طبی کانفرنس کے نام سے ہوا تھا. اس وقت مسیح الملک حکیم محمد اجمل خان نے اس کو قائم کیا تھا. مقصد کیا تھا اس وقت؟ یہ آج کی جو بٹ صاحب نے ساری باتیں کی ہیں اس حوالے سے یہ بیان کرنا بڑا ضروری ہے. بر صغیر پاک و ہند میں انگریز 200 سال کی حکمرانی کے باوجود اس خطے سے دو چیزوں کو نہیں نکال سکا. خطے کے عوام کے دلوں سے، کے اذہان سے، ان کے قلب و روح سے دو چیزیں نہیں نکال سکا. ایک چیز تھی دین، مسلمانوں کے اندر جو دین تھا، جو عشق مصطفیٰ تھا، اس کو نہیں نکال سکا. اور دوسرا جو اس علاقے کا طریقہ علاج تھا، جسے طب اسلامی کا نام دے دیں، طب ویدک کا نام دے دیں، طب یونانی کا نام دے دیں، اور ہم اگر آپس کے لیے بات کریں تو جو اس علاقے کا مقامی طریقہ علاج تھا، اس کو لوگوں کو، بر صغیر کے لوگوں کو دلوں سے نہیں نکال سکتا. اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ ایک بمبئی ایکٹ کے ذریعے، ایک اسمبلی کے قانون کے ذریعے 1906 یا 1909 تھوڑی سی تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، ایک قانون پاس کیا جس کی روح سے یہاں کے جو مقامی طریقہ علاج تھے اس پر پابندی لگا دی. تو مسیح الملک حکیم اجمل خان نے پورے بر صغیر کا دورہ کیا اور اطباء اور وید کو اکٹھا کیا اور مسلسل کاوشیں، جس کی وجہ سے حکومت، اس وقت کی حکومت بھی مجبور ہوئی کہ وہ قانون واپس لے
اور اس کا جو اسٹیٹس تھا اس کو بحال کر دیا۔ یہ جو ہے وہ طبی کانفرنس کا آغاز ہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد جو مسیح الملک حکیم اجمل خان کے شاگرد تھے اور ان کی زندگی میں اس وقت یا یہ جو علاقہ تھا اس کو پنجاب طبی کانفرنس کے حوالے سے وہ لیڈ کر رہے تھے ان کے شاگرد شفاء الملک حکیم محمد حسن کرشی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد پاکستان طبی کانفرنس کے نام سے اس تنظیم کو جاری رکھا اور پھر ایک دفعہ گورے انگریز کے جو پٹھو تھے جو ان کے ہمنوا تھے انہوں نے اس طب پر پابندی لگانے کی پاکستان میں بھی کوشش کی، مگر الحمدللہ کبھی بھی اطباء جو ہمارے بزرگ اطباء کرام تھے شفاء الملک حکیم حسن کرشی اور حکیم نبی خان جمال سویدہ جو مسیح الملک کی فیملی جسے خاندان شریفی کہتے ہیں اس فیملی کے یہاں پہ چوتھی یا پانچویں نسل میں تھے، انہوں نے جو دعا خانہ حکیم اجمل خان کی بنیاد پاکستان میں رکھی، نبی خان جمال سویدہ صاحب، مرزا محمد یحییٰ صاحب، سر میاں شفیع صاحب، طب کرام کے مولانا عبدالرحیم اشرف، مولانا عبدالمالک مجاہد اور مولانا عبدالسلام ہزاروی، اتنے بڑے اطباء کرام تھے، سارے کے سارے اطباء کرام اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے، پھر انہوں نے تحریک جاری کی اور 1965 میں ہمارے لیے قانون منظور کروایا ایچ ایکٹ جسے یونانی آیورویدک اینڈ ہومیوپیتھک پریکٹیشنرز ایکٹ 1965 کے نام سے جانتے ہیں۔ اس قانون کے تحت ہم باقاعدہ رجسٹرڈ ہوئے، ہمارے کالجز وجود میں آئے اور یہ پھر پورے پاکستان میں کالج بنے۔ آج الحمدللہ 37 کے قریب پاکستان میں کالجز ہیں اور یہ معاملہ رکا نہیں۔ 1996 میں اس کی تعلیم کو اپ گریڈ کیا گیا اور پاکستان کی یونیورسٹیوں میں ڈگری کورسز کا آغاز ہوا اور اس وقت 10 یونیورسٹیاں جس میں 8 کے قریب 7 کے قریب پبلک یعنی گورنمنٹ یونیورسٹی ہیں اور 3 پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں۔ اور اجازت دیں تو ایک اذان ہم سن چکے ہیں۔ تو الحمدللہ تعلیم کے میدان میں ہم نے ترقی کی۔ آج یہ آپ جو اٹھیں یہ حکیم یہ واجد ہیں، یہ خاندانی طور پر چوتھی نسل میں کی ہے اور یہ ماشاءاللہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے گریجویٹ حکیم ہیں۔ آج یہ ایم فل میں داخلہ لے چکے ہیں، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں ابھی ایم فل کر رہے ہیں فائٹو میڈیسن میں بی ایم ایس۔ اس طرح تقریباً 250 کے قریب اطباء کرام ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور یہ کامیابی کا نہیں ہے۔ مجھے اکثر میں مایوسی والی باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں، میں ذرا کچھ موٹیویشنل باتیں کرنے کا حامی ہوں۔ یہ امیر صاحب میں سلوٹ کرتا ہوں، بہت اچھا مطلب ہے، میں پہلی دفعہ آیا ہوں مگر آپ کو مطلب دیکھ کر آپ کا نظم و نسق دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی اور بس یہی میں میسج ہے۔ اس طرح صفائی ستھرائی، اس طرح یہ جو لیبلنگ ہے یہ انہوں نے ہیلتھ کیئر کمیشن سے ڈر کے نہیں کیا ہوا کام، یہ 10 سال پہلے کا کیا ہوا کام ہے، یہ ہیلتھ کیئر کمیشن سے ڈر کے نہیں کیا۔ میرے دادا جی نے وہ فوت ہوئے، ان کو 22-25 سال ہو گئے، وہ اس وقت بھی ایسے کرتے تھے۔ ہمیں ایک تانا دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں طب نے تحقیق نہیں، کیا نہیں ہے؟ تحقیق نہیں ہے۔ اس دور میں طب میں تحقیق نہیں ہے۔ آئیے سفر کرتے ہیں تھوڑا سا۔ اگر میں بات کروں گولی سینا کی، آج کپنگ تھراپی میں جو آج سائنس کہہ رہی ہے کہ کپ لگاتے ہیں تو یہ ایپیڈرمس کے نیچے جو ٹاکسنز اکٹھے ہوتے ہیں اس کو آپ ویکیوم پیدا کر کے اسکروچ کر کے نکالتے ہیں تو جسم ریلیکس کر جاتا ہے، بیماری کو خاتمہ ہوتا ہے۔ گولی سینا نے 1400 سال پہلے یہ بات کر دی تھی اپنی کتاب میں القانون فی الطب میں، تحقیق نہیں ہم نے۔ پھر یہ بھی بات چھوڑ دی تھی، میں آج کی بات کرتا ہوں، بڑی لمبی چوڑی باتیں میرے پاس، کبھی مایوس نہیں، میں تحقیق کا عمل کبھی نہیں رکا۔ ہاں
तहकीक के तरीक़ाकार में इख्तिलाफ है, और यही एलोपैथिक और तिब में इख्तिलाफ है। एलोपैथिक में जितनी तहकीक होती है वो एक मफरूज़ा कायम करके जानवरों पर तहकीक का आगाज किया जाता है, और पता ये लगता है कि एक साल्ट, मसलन मैं अगर इजाज़त दें तो किसी ज़माने में हम पेनिसिलिन उस वक्त की मैजिक दवा थी, जादू था उस वक्त का। फिर हमने सुना पेनिसिलिन के बाद ये सल्फर ड्रग्स आई हैं, कोट्राइमेक्साजोल, ठीक है, सेफ्रॉन डीएस, ये तो आज तक इस्तेमाल होती रही है। और एक दवाई है ओटीसी, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। ये दवाइयाँ वो हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी ना कभी खुद टीके लगवाए होंगे या देखी होंगी या सुनी होंगी। देसी दवाई है ना पर्सनल। अच्छा, तो ये आज कितने डॉक्टर पेनिसिलिन लिखते हैं, कितने डॉक्टरों की पर्चियों में कोट्राइमेक्साजोल लिखा जाता है। कभी मुझे किसी डिस्पेंसरी में सबसे सस्ता टीका ओटीसी हुआ करता था, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। एक 90 ml की बोतल होती थी, 90 मरीजों को लगाते थे डॉक्टर, और 25 रुपए की आती थी। आज कौन किसके पास है? मुझे देखा कभी किसी डॉक्टर को लिखते हुए। पता क्या लगा कि ये ओटीसी है, ये सिर्फ भैंसों में इस्तेमाल होती है, ये जानवरों के लिए थी जो इंसानों में लगाते। मकसद मेरा मुखालफत करना नहीं है, मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि वो हमारी तहकीक का मरकज हमारा मजहब था। मेरा हकीम मुनीर अपने मजहब पर तहकीक करता है। मेरी अल्लाह ताला ने अगर ये दिमाग खोल दिया है तो मैं सिर्फ गौदंती, मैं सिर्फ कलई, मैं सिर्फ सदफ, सिर्फ मरवरीद, इनसे इतने काम ले लूं। अल्लाह ताला ने अगर मुझे पढ़ने का मौका दिया, कभी किताब को मैंने खोल के देखा, नजमुल गनी की खजाइनुल अदविया का कभी मुताला करने की मैंने इजाज़त कर ली, कभी किताबुल मुफरदात को पढ़ लिया, कभी तलखीसुल मुफरदात मेरी नजर से गुजर गई, कभी कामुल सना मेरी नजर से गुजर गई। ये किताबें अगर मैंने कभी पढ़ ली तो मुझे ये पता चला कि मैं अगर गौदंती को ग्लो के पानी में कुट दूंगा तो ये किस काम के लिए होगी, मैं इसको अगर भांग के पानी में दूंगा तो ये किस काम के लिए आएगी। ये मैं गौदंती से बुखार से लेकर निकोड़िया, जिस्म के दर्दों से लेकर आम जोड़ों के दर्दों तक में इस्तेमाल कर लूंगा। मगर असल बात में आखिरी नुक्ता मेरा असल बात की तरफ आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तो भी हमारे यहाँ तहकीक की कमी नहीं रही। हम खुद डिप्रेस हो गए। हमने किसी ने इल्जाम लगाया, हमने मान लिया शायद है कत्ल मैं किया हो। किसी ने कह दिया कि सब चोर नहीं, हाँ कि सब मैं अपनी समझा कि मैं चोर है शायद। भाई पहले कान देखे फिर कुत्ते के पीछे दौड़े। कोई हमारी तहकीक की कमी नहीं थी। किताबें मौजूद हैं, हर चीज का हल है। डॉक्टर साहब ने दवाई ली, इसमें यकीनन अजवैन खुरासानी है तो थोड़ा शामिल होगा। अब बेशुमार ली रिपोर्ट सबूब शफा के नाम से हमारे तिबिया कॉलेज के शफाखाने में यूज होता है। मेरा आज भी दावा है, मैंने पूरे पाकिस्तान में प्रोग्रामों में बात की है, कहते हैं तिब में इमरजेंसी दवाई नहीं है। मैं सवाल करता हूँ कि मुझसे बरशाशा का मानी बताएं, सिर्फ बरशाशा, इसका मानी बताएं क्या है। मैंने तो भी पढ़ा किताबों में वो फौरी असर दवा, अगर बरशाशा बनाए और फौरी असर ना करे बरशाशा क्या हुई। अब बेशुबा आदि गोली खा के देखें, नाक बहर है, बहते नाक की एलोपैथिक में जो दवाई इस्तेमाल करते हैं उसका असर 8 घंटे बाद होता है। अब बेशुबा 5 मिनट बाद असर ना करे तो पैसे वापस। 5 मिनट बाद असर ना करे तो पैसे वापस। इमरजेंसी दवाई कहानी है, किसने कहा हमारे पास इमरजेंसी दवाई नहीं है। अब इसके मुखालिफ में एक मुतालबा करता हूँ। मैंने ये साइंसदानों से भी बात की है, पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में भी बात की है, आज आपके सामने भी रखता हूँ। पाकिस्तान में किसी एक डॉक्टर का नाम बताएं जिसने कोई एलोपैथिक दवाई इजाद की है। कोई एक डॉक्टर का नाम बताएं। निशान साहब, कोई पाकिस्तान के किसी एक डॉक्टर का नाम जिसने कोई एक दवाई नहीं माली क्यों इजाद किया। अच्छा, मैं तो हकीम मुनीर के 10 फार्मूले बता सकती हूँ जिन्होंने अपने मदद पे खुद मरीजों को इस्तेमाल करते करते मॉडिफाई
जाती है। इसे मैं कहता हूँ मॉडिफिकेशन करना, हमने खुद किए। जो जवारिश कमूनी ब्याज़े कबीर में लिखी हुई है, दिल्ली के मुरकबात में लिखी हुई है, जो आज कराबादीन आज़म में लिखी हुई, कराबादीन कादरी में लिखी है, वो बनाते हैं। हमने मॉडिफाई की है आज के दौर के मुताबिक। जवारिश कमूनी के 7 नुस्खे हैं, अतीबा ने काम ही नहीं किया। एक दवाई के 7 नुस्खे, यानी कि मुख्तलिफ महल्ले इस्तेमाल में दवाई बदल जाती है। मेरे अपने मतलब में मेरे वाला साहब परदादा दादाजी वाला साहब दुशांदे का एक बॉक्स रखा होता था। वो खत्मी, खबाजी, मुलट्ठी, मुनक्का, कुनाब, पंजीर, ठीक है, परस्योशा, ये सारी चीजें, गौजबान, गुल गौजबान, नफशा, गुल नफशा, सारी चीजें रखी हुई हैं। मरीज की जरूरत के मुताबिक परस्योशा डालना है नहीं डालना, सोमा कल्पा डालना है नहीं डालना, जरूरत के मुताबिक हम करते थे। हर एक ही आमतौर पर अमूमी मौसमी अमराज आते हैं। हमारे पास आजकल सीजन है खांसी जुकाम बुखार का, क्या हम सबको एक ही दवाई देते हैं? हर मरीज की जरूरत के मुताबिक किसी को बारासिंगा, किसी को गौदंती, किसी को शरबत बनफशा और किसी को शरबत इजाज देते नहीं देते? क्यों करते हैं? उधर क्या है? पूरे एक इलाके में ये तहकीक कीजिएगा, पूरे एक इलाके में जिस इलाके में जो सेल्समैन चक्कर लगा गया, उस इलाके के 50 के 50 डॉक्टर नोविडेट लिखेंगे। अगर वो दवाई भी बदल दे तो मेरा नाम बदल। और एक इलाके में माइटल चलती है तो माइटल लिखेंगे सारे। दूसरे इलाके में एक सिप्रोफ्लॉक्सासिन चलती है तो सिप्रो लिखेंगे सारे। एक साल जो उस इलाके में सेल्समैन ने राउंड लगा लिया, किसी को एसी, किसी को अमेरिका का ट्यूबर, किसी को कोई इंसेंटिव दे दिया, वो हम में तहकीक नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हमें लालच नहीं है। आज तक अल्लाह का शुक्र ये है हमें लालच नहीं है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है और कोई कमी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, फजल है। अभी कोरोना की बात की भट्ट साहब ने, चीन ने सबसे पहले कोरोना पर काबू पाया और पूरी तरह कंट्रोल हासिल किया। चीन की जो टीमें आई उनसे हमने इंटरेक्ट की है। क्या कहते हैं वो? तो कहते हैं मुलट्ठी का निशाना बनाया, वो कहते हैं तेज पाक मुलट्ठी कलौंजी ये इस्तेमाल कराई। अमेरिका में हमारा गुलकार है सलमान अहमद, अमेरिका में रहता था, उसकी बीवी भी डॉक्टर, खुद भी डॉक्टर। उसको कोरोना हुआ, उसने क्या इस्तेमाल किया? रोज शहद का पानी और कलौंजी के चंद दाने वो इस्तेमाल करता रहा। 15 दिन उसने इस्तेमाल किए, टेस्ट किया तो नेगेटिव आ गया, कहता मैं ठीक हूँ। और तीसरी चीज, अगर ये कंपनी की मशहूरी ना हो तो करशी का जोहर निशाना इस्तेमाल किया उसने। ठीक है, ये मैंने इसलिए कंपनी की दवाई का जिक्र कर दिया कि ये देसी मेरी तिब की दवाई है ना, मेरे लिए तो फख्र है, मेरी तिब की दवाई। मैं यरकान की बात करूं, आइए मुझे एलोपैथिक में यरकान की दवाई बताएं। मैं आपको कंपनी बताऊंगा, हमदर्द की एट्रीन गोली, हमदर्द की एट्रीन गोली है, 2-2 गोलियां सुबह दोपहर शाम 5 दिन, जितना मर्जी यरकान हो। SGPT SGOT नीचे आ जाता है। ये कंपनी की दवाई है। मैंने भी थोड़ा करशी के नाम लिया था, हमदर्द का भी नाम लेते हैं, ठीक है। और अजमल का शरबत अक्सीर जिगर जो एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट की बेस पर तैयार किया हुआ है, इस्तेमाल करके तो देखें, पढ़ा तो करें, सिर्फ अदम आगाही। और ये जो हम तहरीक लेकर चले हैं, जो आज सईद भट्टी साहब ने और मुनीर साहब ने हमें इकट्ठा किया है, ये कोई पहला हमारा सेशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में कोई तकरीबन मेरे 1,500 सेशन हो गए भट्टी साहब। बिल्कुल ज्यादा बल्कि ज्यादा हो गए। मैनू तो लोग कहते हैं, मैंने फोन करके कहते हैं लाहौर के दौरे से कदों आ रहे हो? कि मैं कल पिंडी था, 3-4 दिन पहले हम समंदरी थे। इसी तरह की महफिलें की हैं, लोगों को बातें बताई हैं और मोटिवेट की है। मैं दरख्वास्त क्या करता हूँ, ये आज की महफिल का मकसद क्या है, उसको आप आखिरी बात करते हैं। मायूस नहीं होना। पूरी दुनिया इस वक्त एक दफा फिर हमारी कुदरती तरीका इलाज की तरफ देख रही है। अब हमने सबने मिलके ये साबित करना है कि वो हकीकी तरीका इलाज हम तिब्बे यूनानी है, हम जो तरीका इलाज अख्तियार किए हुए, ये जितनी भी बाकी है ना,
निशान साहब में भी कल मैंने बात भी की, ये नजरिया 3, 4 गजा जितने भी ये सारे तिब हैं, कोई अलग नहीं है। ये तफरकाबाजी जिस तरह इस्लाम को तफरकेबाजी में खराब किया ना, कायदे आजम से किसी ने पूछा था ना कि आपका कौन सा मसलक है, तो हज़रत कायदे आजम रहमतुल्लाह ने क्या जवाब दिया था, जो मेरे नबी का मसलक था। तो हम ये मसलक क्यों ना अख्तियार करें? हमारा भी तो एक तिब है ना, जिस तरह मर्जी इलाज करें। कौन कहता है कि साबर मुल्तानी के नुस्खे आप इस्तेमाल ना करें? ये किसने मना किया है? कौन कहता है इलाज बिल ग़िज़ा का सहारा ना लें? ये सारे तिब्बे यूनानी का हिस्सा है। और रेजिमेंटल थेरेपी, इलाज बिल यद, ये तिब का तीसरा हिस्सा है। और हम में से अक्सरियत ने छोड़ दिया, नुकसान उठाया। हकीम मुनीर साहब के खानदान ने जारी रखा, कामयाब रहे। जिसने इलाज बिल यद अख्तियार किया, उसके मतलब पे रौनकें लग गई। और मेरी आप सब दोस्तों को दरख्वास्त है, हिजामा सीखें, जराही सीखें, फसद सीखें, लीच थेरेपी, जोंकों से इलाज सीखें। नहीं आता तो मुझे हुक्म कीजिए, मैं आपको ट्रेन करूंगा। और इंशाअल्लाह आज इतने मुजाहिदीन पैदा हो चुके हैं जो आपको फीस भी नहीं लगती पड़ती। कोई आप अगर थोड़ा बहुत बंदे को आपको हेल्प करनी पड़े तो कोई मसला नहीं। आज ये सिलसिला शुरू हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक बन चुकी है। 10 साल पहले हकीमों में हिजामा का नाम कोई लेता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक की सूरत अख्तियार करके हर जगह हमने वर्कशॉप्स की है, लोग हिजामा की तरफ आ रहे हैं। और जो तिब्बे नबी की निस्बत है जिसके साथ, तो हम ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक बर्पा हो चुकी है। जरूरत हमने अपने लेवल पे क्या करना है। जनाब इकबाल अहमद कशी जो हमारे सदर हैं इस वक्त पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस की, उनसे किसी ने सवाल किया कि हम अपने लेवल पर पाकिस्तान की खिदमत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा आसान है। क्या आप जो भी काम कर रहे हैं उसे दयानतदारी से करें, यही पाकिस्तान की खिदमत। बस हम अपना मतलब कर रहे हैं। व्हाट्सएप ने बिल्कुल सही इशारा किया। जो अच्छी प्रैक्टिस करते हैं वो क्या कहते हैं, हेल्थ केयर कमीशन कहता है कि आपकी दवाई जो पड़ी हो वो आइडेंटिफाइएबल हो, यानी कि आप ये डब्ल्यू उठाए ना तो ये सूंघनी ना पड़े किसके अंदर क्या है, ये बताए कि इसके दवाई अंदर क्या है। नुस्खा लिखना नहीं जरूरी है, आप नुस्खा अपने रजिस्टर के पास अपनी ब्याज में लिखे, कोई पूछे तो हमने मेरे ब्याज में लिखा हुआ दिखा सकता हूं। ये कब बनाया, इस डब्बी में कब डाला है ना, ये भी आप नोट करें। मैं खुद जब ये हेल्थ केयर कमीशन आई हमने इंटरेक्ट किया, बहुत सारे मामला हुए, उस वक्त मेरे अपने साथ 2 वाकयात आपसे शेयर करता हूँ, छोटे बात सुन करके। मैंने एक सफूफ कुला बनाया, मुंह के छालों के लिए एक सफूफ तैयार किया, और इत्तेफाक देखिए 1 साल में मेरे पास खुदा को मरीज हुई है। वो उसके अंदर हल्की सी वो आ गई नमी, और जो पर्ची डाली हुई थी ना वो खराब हो गई, वो मिट गई। अब वो मैंने 1 साल बाद ना सबूत खुदा लिखा लड़का ढूंढ रहा है, सूट खुदा कर ऊपर लेबल ही लगा हुआ, वो अंदर से पर्ची निकाली तो वो उसमें तेल लगा हुआ है, लिखे कुछ नहीं। अब हम पूछ रहे साथी यही है, अब मैं कभी सूंघ रहा हूँ, थोड़ा सा शक में पड़ गया पता नहीं है कि नहीं। एक जैसी दवाइयाँ एक जैसे इजाक मिलते जुलते इजा होते हैं हमारे पास। हम 2 बंदे कई जगह यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं कई जगह पे, इसी तरह हम ठीक है भी उसमें नीला होता है तो वो काम है कर। तो इसलिए तो ये मामला हुआ, मैंने उसे कहा इसे ज़ाया कर नहीं बना। ये क्यों जरूरत पेश है? अगर मैंने यहाँ लिखा होता, यहाँ पे लेबल लगाया होता और उसकी डेट लिख देता कि जनाब ये मैंने 1/7/2015 को मैंने ये इसमें डाला है, मेरा क्या जाना था? फायदा किसका था? अल्टीमेटली मेरा फायदा था, आपका अपना फायदा है। ये कह रहे हैं एवरी ट्राई करने लोग क्या मत आ गई। मैंने मुनीर साहब से पूछा कितनी दफा यहाँ पे लोग आए हैं आपको बंद करने के लिए, इन्होंने कहा जी 1 दफा आए, उन्होंने कहा कुछ नहीं दे के चले गए। अगर आ जाए तो फिर 3 बातें ना ध्यान रखनी। आप क्वालिफाइड है, रजिस्ट्रेशन है एनसीटी की, आपका मतलब पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है, आप अपनी यूनानी तरीका इलाज के मुताबिक दवाइयाँ दे रहे हैं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह डट जाए, कोई बंदा है उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो। और अगर कोई, मैं एक पर्सन को जुमला क्या करता हूँ, मैं सवाल करता हूँ ये बिजली का बिल हमें आता है तो
कई दफा होता रहा, अब तो खैर मामला कुछ बेहतर हो गया, ओवर बिलिंग आए थे। क्या हम बिजली का बिल मीटर उतार के फेंक देते थे? वो हराम जिंदगी उस मीटर रीडर ने की, या उसके एक्सीएन या एसडीओ ने टास्क दिया कि इस इलाके का लोड पूरा करना है, उसके लिए ओवर रीडिंग फेंकनी है आपने, उसने हराम जिंदगी कर दी। क्या करते हैं हम जाते हैं दफ्तर में ठीक कराने के लिए, कई चक्कर लगाते हैं, मीटर फिर नहीं फेंकते, कोशिश आखिरी कोशिश थी बिजली ज़ाया ना हो। तो ऐसे हराम जिंदगी हमारे साथ किसी मैदान में घुस, उसका मुकाबला कैसे करते हैं? इकट्ठे होकर अपनी कवानीन को जानकर अपनी चीजों की मालूमात हासिल करना। एक ये एंटी पैथी मूवमेंट शुरू हुई, एक ड्रग इंस्पेक्टर आया हकीम साहब के पास, फर्ज किया हकीम साहब मुनीर साहब है, हकीम साहब ਤੁਹਾਡੀ रजिस्ट्रेशन की थी, हकीम साहब ने कहा जी ऐ लगी हकीम साहब कहते जाली है, मुनीर साहब कायम हो गए, मुनीर साहब ने कहा अच्छा जाली है, चल मेरे ते केस कर, कि अगर ये निकल आई असल तो फिर शरीफ आदमी ने गाल नहीं कटी, उन्हें कर दी, उन्हें क्या करे असल निकल आई, जाली निकल आई तो मैं कौन सा केस करांगा जिन्हें मुझे जाली समझ देती है, तो अगर असल निकल आई तो फिर मैं तेनू XYZ की कहना रखी क्यों है सब गुस्सा करके मैं मजाक कर रहा हूं। यकीन जाने लौटा वाकई लाहौर का वाकई सर, ये मामला ये है, अगर आप सही है डरने की जरूरत नहीं होती, कायम हो जाते हैं और इस तरह मिलते बैठते रहेंगे, इंशाल्लाह हम कायम रहेंगे। मैसेज ये है कि महीने में एक दफा अपने इस फन के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, आपस में इसी तरह बैठा करें, कभी मुनीर साहब के पास, कभी किसी बॉस आपस में दावते थोड़ा सा दिया करें, मिलते मिलाते रहा करें, एक कप चाय, एक गिलास पानी पे, कोई दरमियान में तकल्लुफात का मामला ही ना रखे ताकि किसी को भार ना लगे उठने बैठने में, इसी में आपस में मिलते मिलाते रहे, बस यही मैसेज, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने मामला अपने डोर स्टेप पे हल करते हैं। और ये जो कवानीन आते हैं सिर्फ इनको जानना जरूरी है। हम सऊदीया जाते हैं, वहां पे क्या है, राइट हैंड ड्राइविंग है, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग, जब कानून का नहीं पता हमें छोड़ देंगे वो? क्या सऊदीया में हमें कानून का नहीं पता तो क्या छोड़ देंगे? सऊदीया कौन नहीं जाना चाहता हमें से? कौन उम्रा और हज की सादा हासिल नहीं करना चाहता? मुसलमान सारे जाना चाहते हैं ना। अगर हमें वहां के कानून का नहीं पता तो हमें छोड़ देंगे? हम वहां पे गाड़ी ड्राइव करेंगे उनके कानून के मुताबिक करेंगे, इसलिए कानून का जानना फर्ज होता है। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कवानीन से आगाही भी जरूरी है। इस मकसद के लिए आपस में मिलकर मिलाते रहा करें, राब्ता रहेगा। पाकिस्तान टिपी कॉन्फ्रेंस वाहिद पाकिस्तान की जमात है जिसका मरकजी दफ्तर मौजूद है, जिसके इस वक्त मरकजी सदर जनाब इकबाल अहमद करशी है, जिसके मरकजी सेक्रेटरी जनरल जनाब प्रोफेसर हकीम रसूल अजीज है, सीनियर नायब सदर डॉक्टर जाहिद अशरफ है जो मौलाना अब्दुल रहीम अशरफ के फरजंद है, और ये सारा वो खानवादा है जिनकी लड़ियां कई नस्लों से इसी खानवाद इसी काम के साथ जुड़ी हुई है। हमें अपने लिए इकट्ठे होना, इस प्लेटफॉर्म पर होना पड़े। हमारी तो मरकजी दफ्तर भट्टी साहब अक्सर आते हैं, मुनीर साहब को मैं सबको दावत देता हूँ, मरकजी दफ्तर भी तशरीफ लाएं, किसी को कोई काम है। आजकल हेल्थ फाउंडेशन, पंजाब हेल्थ फाउंडेशन से हमने वो काम तहरीक चलाई थी, वो बिना सूद कर्जों का इजरा होगा। जो दोस्त अपना मतलब अच्छा करना चाहे, वाइट वॉश गाड़ी लेना चाहे, मोटरसाइकिल, उसके लिए बिना सूद कर्जों का इजरा हो गया, उसके लिए 5 लाख रुपया है, उसके लिए किसी ने कोई रहनुमाई लेनी है, दफ्तर तशरीफ लाए, लड़का बैठा हुआ है, पूरी तरह से तो यही मेरी दावत है, यही मेरा मैसेज है। अल्लाह ताला आपका कामयाब मैसेज हो, और इंशाल्लाह हम मिलते रहते रहेंगे और इस तरह की बातें होती रहेंगी। बहुत सारा टाइम गुजर गया, अल्लाह ताला हमारी जो बैठना है इसको कबूल फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, शहबाज शरीफ का दौर था तो अस्पताल में एक वकील साहब चले गए हड्डियों का ऑपरेशन कराने के लिए। इंसिजिया वाले से टीका लग गया कुछ ज्यादा लगने की वजह से उसको अटैक हो गया, वो वहीं मर गया। शहबाज शरीफ ने, वकीलों ने
पूरे पाकिस्तान में अत मचा दी मुल्क को। उन्होंने डॉक्टरों ने जान छुड़ाने के लिए तबीबों का नाम लेना शुरू कर दिया। पहले तबीबों से दवाइयाँ खाता रहा था, उसके गुर्दे खराब हो गए थे, उसका जिगर खराब हो गया था। तो भाइयों हम गुर्दे खराब करते हैं, इसने कहा हम गुर्दे खराब करते हैं। लाए मेरे पास, मैं चैलेंज करता हूँ, जिसका गुर्दा जख्मी है 10 दिन में उसका गुर्दा ठीक ना हो तो मैं जुर्माना दूंगा। ये कैसी हुकूमत है? उसके कहने पे हकीमों पे इल्जाम लगा दिया और पूरे पाकिस्तान में हकीमों की शामत ले आई। दोस्तों इस बात को समझें और हकीम कशी के ग्रुप से मुंसलिक हो जाए, सलीमी साहब का साथ दे। ये पाकिस्तान की यूनिटी के लिए जो तबीबों की बनी हुई है, तबीबों को अरूज पर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये कोरोना कोई मर्ज नहीं है। आज सारे पाकिस्तान में सारे लोग डरे हुए हैं। मेरे पास 150 मरीज कोरोना का है, ऐसे इलाज करता रहूं। सिर्फ क्या है, मास्क लगाया और सैनिटाइजर लगाया, कुछ भी नहीं। किसी को कुछ नहीं हुआ, मेरे बच्चे यही दवाई देते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। क्या था उसकी खुराक में? हमने क्या किया, उनको पपीते का और अनार, पपीता, कलवंजी और शहद का मुरक्कब, जैसे फ्रूट चाट बनाते हैं इसी तरह बना के उनको कहा भी ये खाओ डेली। कुछ भी नहीं किया हमने, सबको। दवाइयों में क्या करा, वही पुराने नुस्खे हैं। हमने गोजन बना के दे दिया, शीर मदार के साथ बना हुआ था, वो बहुत सारे एंटीबायोटिक है, बड़ी सारे जरासीमों को मार डालता है। क्या वो नमूनिया की शिकायत नहीं पैदा करता? वो किसने कहा नहीं करता? कोरोना जो है ना वो फेफड़ों पे असर कर रहा है, आपको नहीं पता? नमूनिया जैसी उसकी अलामतें करती लग रही है। तो गोजन दे दे, शहद दे दे, ये कलवंजी दे दे। क्या है, ये सारी चीजें जो है ना आपके प्लेटलेट्स को पूरा करती हैं। ये सारी चीजें आपके एंटीबायोटिक हैं। आप क्यों नहीं मानते इस बात को? लिहाजा हमारे सरबराह सलीमी साहब हैं, ये ग्रुप को लेके चलेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान में। इंशाल्लाह हम अरूज पर भी जाएंगे और दुनिया मानेगी इस बात को। आज जितने भी फॉरेन कंट्री में हैं उनको सबको ये हैरत है कि पाकिस्तान में पता नहीं क्या हुआ, कोरोना का तो कैसे बढ़ गया। इनकी डेथ रेशियो बहुत थोड़ी है, सारे परेशान हैं भाई। यहाँ हम रोज फेसबुक पे अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं कि भाइयों बिल्कुल घबराना नहीं है, इलाज करें। हमने अपने नुस्खे लोगों को यूं करके फेंक दिए ताकि सारे तबीब हजरात उसको ले और सारे इलाज करना शुरू कर दें। इसलिए हमारा ये ग्रुप सलीमी साहब लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला, हम सब तरक्की पे जाएंगे। आप लोगों से बहुत सारा शुक्रिया, आप लोग आए, हमारी हौसला अफजाई करी, हम आज बहुत खुश हैं। 1 साल पहले मैंने चिकन पे रिसर्च करी कि उसकी ग़िज़ा बहुत ज़्यादा डेंजरस है चिकन की। उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जो है ना उसके गोश्त में आ गए हैं जो हम लोग खाते हैं। तो चिकन जो है ना वो बहुत सारी बीमारियां पैदा कर रहा है। वो सारी रिसर्च मैंने YouTube पे लोड कर दी। मेरा एक चैनल चल रहा है, मैं उस पर लोड करता रहता हूँ, अपने व्यूज देता हूँ, रिसर्च है उस पर फेंकता रहता हूँ। तो चंद ही दिनों के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक लिटरेचर आ जाता है कि चिकन हमारे लिए कैंसर का बायस बन गया। तो क्या रिसर्च हमने करी, व्यू उन्होंने दे दिए। आप लोग समझते हैं सारी बात को? हम तबीब हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं। किसने कहा हमने रिसर्च करते? रोज मुरक्कबात को उल्टा सीधा कर करके चेक करते हैं, माहौल के मुताबिक अपनी दवाई को चेंज करते हैं। क्या करते नहीं हम? आप देखें कभी खसरा आता है तो बिल्कुल सादा सादा दाने निकलते हैं। 1 साल आया था, एक खसरा आया, उसने सारे मुंह के छाले बन दिए, अंदर सारा मुंह छिल गया, मेदा अंतड़ियां छिल गई, खसरा किसी और शक्ल में आ गया।
एक साल दोबारा खसरा आया तो फिर वैसा नहीं था। तो हमें माहौल को चेंज करना होता है। हम लोग जानते नहीं अगली दवाई क्या करनी है, हम उससे ज्यादा रिसर्च करते हैं। लिहाजा आप लोग फिक्र ना करें, तबीब हजरात बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, आइंदा आने वाले वक्त में भी रिसर्च करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको आने की, जो आप लोगों ने गैदरिंग की है, आइंदा आने वाले वक्त में भी ऐसी गैदरिंग हो। तो बल्कि आपका बहुत सारा